Hello, I am Yojit Kaustav of UG2 studying CSE in Triple IT 3 City. I have passed JEE mains with a rank of 24,200. And today I'll be teaching thermodynamics from physics. Thermodynamics is a chapter which is continuing thermal properties of matter. In this, we'll be studying how work is converted into heat and heat is converted into work. For example, in winter, when you rub your palms together, we feel it to be hot in the palms. This is because we are doing some work, and this work done is in turn generating heat, as they gave over. Now, in other way, in a steam engine, for example, होते हैं ना steam engines in trains and all, the heat of the steam is used to move the trains. It is used to move the pistons, which in turn rotate the wheels of the train. Okay, just say okay, यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रेन, ठीक है, जैसे huge train such. It has wheels, yeah, it has many wheels, and it has a steam engine. So what people do is they put some coal or something, a fuel into this steam, and heat is generated. Okay. Now this heat in turn, it moves the pistons, which are inside. It's a mechanism inside the train itself. Okay. ये होती है जिससे व्हील्स जो है वो रोटेट हो जाते हैं, और ये व्हील्स जब रोटेट होते हैं तो वो ट्रेन आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है यू आर बेसिकली टर्निंग द हीट इनटू वर्क which in turn is providing kinetic energy to the train. In physics, we define the notions of heat, temperature, and work more carefully. We'll be thinking कि ये सारे तो interchangeable हैं, पर नहीं, ये सारे they have some specific definitions to them, and we have to be careful when we are dealing with them in physics. On contact between a hot and cold body, the fluid caloric flow from the colder body to the hotter body. तो क्या होती है, अगर आप देखो कभी चाय बनाते हो, हमारी हाथ तवे पे या वो जो बाउल है उससे लग जाएगी, तो हमें एक ऐसे ही जलेगी ना हाथ. क्यों होती है? क्योंकि एक कैलोरिक बोल के एक फ्लूइड होती है जो हाथ से निकल के उस पे जाती है, पर हमें लगता है कि उससे हमारे पे आ रही, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है. This is similar to what happens when a horizontal pipe connects two tanks containing water at different heights. तो हाँ, ये समझो कि there's two tanks over here. Okay, this is an interesting concept actually. There's two tanks, and this tank has water till here. Okay, it has water till here, and there's another tank, same dimension, same shape, same size, and it has a little bit less water, say till here. Okay, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पाइप से जोड़ देंगे. ठीक है, यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे. कहाँ? नीचे, बीच में, ऊपर से नहीं, यहाँ से नहीं, ये वाली पाइप नहीं, पर नीचे वाली पाइप लगा देंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है, इसमें कम है, तो इससे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी. और ये प्रोसेस कब तक होते रहेगी? जब तक बोथ ऑफ द टैंक्स हैव इक्वल वाटर. इस टैंक में हो गई कि इतना पानी आ गया, ठीक है, और ये पाइप हो गई, और इस टैंक में सेम उतना ही पानी होगा जितना इस टैंक में, तो पानी ये हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी. Likewise, and you observe that boring of heat reduced depending. तो हाँ, तो एक सर थे
बेंजामिन थॉमसन, या उनको इवन काउंट रॉमफर्ड बोल देते हैं, जो 1798 में थे। उन्होंने ये देखा कि जब एक ब्रास कैनन को बोर किया जा रहा है, मतलब पता है ना, जब पानी चाहिए हम बोर करते हैं वैसे, तो जब एक ब्रास कैनन को बोर कर रहे थे, बहुत हीट आ रही, ठीक है, और ये हीट जो है पानी को उबलने के लिए बस था। तो ही ऑब्जर्व दिस, एंड ये हीट जितना वर्क कर रहे थे हम लोग, जितनी वो हॉर्सेस ड्रिल को रोटेट कर रहे थे, उतना ज्यादा हो रही थी हीट। पर ये हीट जो है ना, वो ड्रिल के शार्पनेस पे नहीं थी, क्योंकि ड्रिल कैसे होती है? ड्रिल समझ लो, ये है पिस्टन और इस पे होती है ड्रिल, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ड्रिल जो है, इसकी शार्पनेस पे वो हीट जितना बाहर आई, ये इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट, हाउएवर हाउ मच इट इज गेटिंग रोटेटेड, दैट is affecting the amount of heat it is giving out. Okay, so in caloric picture, caloric मतलब आप ये लिए समझ लो कि thermodynamic है, ये है कि heat है। calorie means something to do with heat. Okay, a sharper drill would scoop out more heat fluid from the pores, but this was not observed. ये समझना था कि दे वर थिंकिंग कि अगर ड्रिल बहुत शार्प है तो और हीट आनी चाहिए, पर ये नहीं हो रही। A most natural explanation of the observations was that heat was a form of energy, and an experiment demonstrated conversion of energy from one form to another, from work to heat. तो क्या हो रही थी, जितना वो घोड़े काम कर रहे थे, पुश कर रहे थे, ये कर रहे थे, उतना ज्यादा हीट जनरेट हो रही। It wasn't depending on the sharpness or the manufacturing of the drill itself, but the amount of work that is being done. Okay. Now, thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. ये बहुत ही important definition है। अगर 2 मार्क की क्वेश्चन आ गई कि thermodynamics क्या है, what is the branch of physics that is called thermodynamics? This is the answer. Okay, it deals with heat and temperature and conversion of. Thermodynamics is a macroscopic science and deals with bulk systems and does not go into the molecular constitution of matter. Thermodynamics को ना हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और it doesn't actually factor कि एटम्स क्या कर रहे हैं या छोटी छोटी चीजों को क्या हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी कॉन्सेप्ट जो दिखती है, and its concepts and laws were formulated in the 19th century before the molecular picture of matter was firmly established. Thermodynamic description involves ठीक है वही बोल रहा हूँ ना। Thermodynamics is something you can see, feel and basically दिखती है। You can see कि पानी उबल रही है या कुछ गर्म हो रही है क्योंकि धुआं आ रही है उससे। All of this दिखती है ना, तो मैक्रोस्कोपिक हो गई है सब कुछ, which are suggested by common sense and can usually be measured directly. Microscopic description of a gas, for example, will involve specifying the coordinates and velocities of the huge number of molecules constituting the gas. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर ये माइक्रोस्कोपिक हो गई डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गैस, गैस तो पता है, जैसे हवा हो गई गैस, ऑक्सीजन हो गई गैस, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस ना, इनको डिस्क्राइब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना है कि यू हैव टू सी द कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि ज्यादा वेलोसिटी है तो बहुत ही तेज से आ रही है हवा, या ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो बहुत डेंस है हवा, वैसे। The description in kinetic theory of gases is not so detailed, but it does involve molecular distribution of velocity. ये KTG बोल के कॉन्सेप्ट होती है। Kinetic theory of gases is a concept
which deals with the movement and the orderness of the molecules. ठीक है. And thermodynamic description of the gas, on the other hand, avoids the molecular. तो बेसिकली जो इस चैप्टर में होती है, it's not going to be involving all the molecules and the small stuff. It's going to be just about the stuff which you can see, जैसे तवा हो गई, या अगर ये बॉटल बहुत गर्म हो गई तो क्या हो, वैसे आते हैं. एंड ठीक है. It is specified by macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass and composition. ये सारे इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ती जाएगी आपको समझ जाएगी. ठीक है. तो अभी के लिए याद रख लो कि we'll be coming back. The distinction between mechanics and thermodynamics is worth bearing in mind. In mechanics, our interest is in the motion of the particles or bodies under the action of forces and torques. Thermodynamics is not concerned with the motion of the system as a whole. जैसे हो गई कि मेरे पास ये पेन है हाथ, ठीक है, मैंने इसको फेंका, ऐसे फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिए तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ ताकि ये आगे जाए. ठीक है. पर अगर मैं इसी पेन को क्या करता हूँ, एक लाइटर लेके थोड़ा ये करता हूँ, हीट अप करता हूँ, तो क्या ये पेन मेरे हाथ से बाहर जा रही है? नहीं. तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई इसकी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हमारी लेना देना नहीं है. इसको एक और चेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, कौन सी वाली? थर्मोडायनेमिक चेंज ऑफ एनर्जी. इसको हम हीट दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट. तो दैट्स द थिंग. इन मैकेनिक्स our interest is in the motion of particles or bodies under the action of forces and torques. Thermodynamics is not concerned with the motion of the system as a whole. Okay? It is concerned with the internal macroscopic state of the system. Say, एक बुलेट जब फायर होती है, जो चेंज होती है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट इज टेम्परेचर. व्हेन द बुलेट जाके एक ऐसे चिपक जाए, हाँ, और आर पार नहीं जा पाएगी वो बुलेट, तब जो स्टॉप हो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो ब्लॉक भी तो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, और वो बुलेट भी रुक गई है. तो ये काइनेटिक एनर्जी विच द बुलेट पोसेस, वेयर डिड इट गो? बेसिकली the kinetic energy of the bullet gets converted into heat, changing the temperature of the bullet and the surrounding layers of wood. तो जब ये बुलेट आएगी मेरे हाथ, मतलब ये हाथ अभी वुड है, ठीक है, तो इससे टकराएगी, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द बुलेट इज गोइंग टू गेट डिसिपेटेड इनटू टेम्परेचर. इस बुलेट की टेम्परेचर बढ़ेगी और इस वुड जहां ये है, ठीक है, जहां ये टकराई है, इन लेयर्स की भी टेम्परेचर बढ़ जाएगी. Temperature is related to the energy of the internal motion of the bullet, not the motion of the bullet as a whole. Okay. So this is the difference between kinetic field, जैसे मैकेनिक्स हो गई, और थर्मोडायनेमिक्स. तो अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. Equilibrium in mechanics means that the external force and torque on a system are zero. ये तो पढ़ा ही होगा आपने फोर्स चैप्टर में. Equilibrium in mechanics means that the net external force and torque are zero. Okay. The term equilibrium in thermodynamics appears in a different context. We say that the state of a system is in equilibrium state if the macroscopic variables that characterize the system do not change in time. जैसे ले लो कि एक गैस है एक कंटेनर, ठीक है, अगर मैं ये रूम को पूरी तरह से बंद करूं तो एक कंटेनर बन जाएगी ये रूम, completely insulated from its surroundings with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time. It is in a state of equilibrium. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सिस्टम्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो डिफरेंट गैसेस है. वो क्या गैसेस है? नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम, हाइड्रोजन, उन सबसे फर्क नहीं पड़ती है.
और देखो इस वाले डायग्राम में के डायग्राम, ये वाली जो, ठीक है, इसमें क्या दिख रही है हमें? ये दो गैसेस हैं और इनके बीच में एक ब्लू कलर वॉल है, और इस ब्लू कलर वॉल को क्या बोल रहे हैं? ए डायबेटिक वॉल। ठीक है, तो ये एक इंसुलेटिंग वॉल है जो हीट को फ्लो करने नहीं देती। तो समझ लो कि आप क्लासरूम में हो, ठीक है, आप एक सेक्शन के हो, आपकी एक और दोस्त एक और सेक्शन में, और आपको क्या होती है कि हमें जाके मिलनी है उनसे, ये करनी है, बात करनी है, खेलना खेलना है, कूदना है। पर ये ब्लू वॉल है आपकी टीचर, आपके क्लास में बैठ गई है वो, आपको नहीं जाने दे रही। ठीक है, तो योर टीचर इज बिकमिंग द ए डायबिटिक वॉल, जो फ्लो ऑफ हीट या आपको अलो नहीं कर रही है आर पार जाना। ठीक है, और अब बी डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, द सेम सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डायथर्मिक वॉल। ठीक है, a conducting wall that allows heat to flow from one to another। तो क्या होती है ए और बी दूसरे डायग्राम में, दे डोंट हैव प्रॉपर वॉल। क्लासरूम में टीचर नहीं है, ठीक है, टीचर लीव पे गई है कि सोच लो कि लंच है, ठीक है, तो तब क्या होगा? आप यहाँ से वहां जाएंगे, आपके दोस्त यहाँ से वहां आएंगे, दूसरे क्लासमेट्स के दोस्त भी यहाँ से वहां आएंगे, ये सब कुछ होता रहेगा ना। तो ये सब कुछ कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक ना आए तब तक ये चेंज होते रहेंगे। कि हाँ, आप अपने दोस्त के साथ बैठ गए हैं, आपके क्लासमेट अपने अपने दोस्तों के साथ सेक्शंस में बैठ गए, दैट इज द स्टेट ऑफ thermal equilibrium। Okay. In general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the surroundings। ठीक है, समझ गया ना? Consider two gases A and B occupying two different containers। ये सब कुछ हो गया है। We experimentally know that pressure and volume of a given mass of a gas can be chosen to its two independent variables। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर ये है ए गैस, ठीक है, इसको हम थोड़ा वॉल्यूम दे रहे हैं, उस कंटेनर में ही इतना सा स्पेस उसे दे रहे हैं कि ये ले, ये तेरी स्पेस, तू जो चाहिए वो कर ले, वहां हम तुझे नहीं रोकेंगे। इसी स्पेस को हम बोल रहे हैं कि ये वॉल्यूम, ठीक है, और उसी वॉल्यूम में प्रेशर भी होती है, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में हैं, तो हो जाएगी कि एक बच्चा एक बेंच में बैठ रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे बेंच में बैठ रहा है। तो जब आप आएंगे, यू हैव टू सी सीट, और जो सीट फ्री मिल रही है आपको, जिसपे कोई बैठा नहीं है, आप बैठ जाएंगे बस। आप ये नहीं करेंगे कि दूसरे वाले के सीट में बैठेंगे ना। तो दैट्स प्रेशर बेसिकली। Let the pressure and volume of gases be PA and VA and PB and VB। कि एक गैस पे है PA वाली प्रेशर, ठीक है, ये समझ लो कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक्स और बार वो यूनिट्स पता है, तो आपका क्या बोलते हैं कि PA हो गई, ले लो 1 बार, ठीक है, और PB हो गई 2 बार, ठीक है, रैंडमली ले रहे हैं, कोई भी ये नहीं। अभी आप समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो पीबी ले लिया हमने 2, और वैसे ही वीए हो गई कि 1 लीटर हो गई या हाफ लीटर हो गई, वॉट एवर, और वीबी कुछ और भी हो सकती है, वही हो सकती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द एक्चुअल सिनेरियो। Suppose first that the two systems are put in proximity। मतलब पहले क्या हो रही है, हम उन्हें आसपास रख रहे हैं, proximity मतलब आसपास रखना, but are separated by a diabetic wall। वही बोला हूं ना, आपकी टीचर बैठ गई है आपके क्लासरूम, ठीक है, an insulating wall can be movable that does not allow flow of energy from one to another। The systems are insulated from the rest of the surroundings also by similar adiabatic walls। यह है पहली सिनेरियो हमारी।
ठीक है। और दूसरे सिनेरियो में क्या हो रही है, adiabatic wall is replaced by a diathermic wall, a conductive wall which allows the energy flow from one to another. It is then found that the macroscopic variables of A and B change spontaneously until both the systems can attain equilibrium. After that, there is no change in state. वही बोला है ना। तो दूसरा पहले सिनेरियो में जब अगर पी ए से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है, ए को है पी ए वाली प्रेशर और वी ए वाली वॉल्यूम, और बी को है पी बी वाली प्रेशर और वी बी वाली वॉल्यूम, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो तो फ्लो करती है। अब आप अपने दोस्तों के क्लास जा सकते हैं, तो एक क्लास में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे में कम, तो वॉल्यूम एक में ज्यादा होगी और दूसरे में कम हो जाएगी ना। वैसे ही जब डायथर्मिक वॉल हो, यू विल बी नोइंग दैट पी ए और वी ए और पी बी और वी बी जो फाइनली हो जाते हैं, जहां ये देखो ये दिया गया है पी बी डैश और वी बी डैश और पी ए डैश और वी ए डैश, ये कब है, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन। उसके बाद है ये वेरिएबल्स, पहले तो नॉर्मल पी बी और वी बी ही थी। इन वेरिएबल्स में क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है, सो देयर इन अ वे कनेक्टेड, वो एक इक्वेशन होती है। I'll explain to it. I'll just write it down over here for now. अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, बाद में फिर से एक्सप्लेन कर लूंगा मैं, ठीक है। सो अभी क्या होने वाली है, पी ए डैश वी ए वी ए डैश, अच्छा हाँ टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में कर दूंगा, पी ए डैश into into V A dash is equal to P B dash into V B dash, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। यहाँ पे जब ये दोनों क्या बोलते हैं, सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, दिस विल बी द इक्वेशन दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस ओवर, ठीक है। ये याद रखो अभी के लिए, अगर समझ नहीं आई तो प्रॉब्लम नहीं है, आई एक्सप्लेन कहां से आए ये इक्वेशंस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। there's no more energy flow from one to another, so we can then say system A is in thermal equilibrium with system B, ठीक है। what characterizes the situation of thermal equilibrium between two systems? You can guess the answer from your experiment. In thermal equilibrium, the temperatures are equal. अब आते हैं zeroth law of thermodynamics, ठीक है। टेक्निकली तो 3 लॉ है, पर बोलने में होती है कि एक zeroth लॉ है, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इमेजिन टू सिस्टम्स ए और बी, ठीक है, ए और बी। एक मिनट मैं देखता हूँ कि अगर लेजर हो पाए तो लेजर, चलो बाद में देखते हैं, अभी के लिए मैंने अक्सर से देख रहा हूँ, ठीक है। Imagine two systems A and B separated by a diabatic wall, while each is in contact with the third system C via a conducting wall. The states of the systems, that is their macroscopic variables, जैसे हो गई कि प्रेशर हो गई, वॉल्यूम हो गई हो, या टेम्परेचर हो गई, ये सारे macroscopic variables will change until both A and B come to thermal equilibrium with C. After this is achieved, सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक मतलब क्या है, जो हीट फ्लो को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, हीट फ्लो एलो नहीं करती, कंडक्टिंग एंड सी इज इंसुलेटेड फ्रॉम A and B by an adiabatic wall. It is found that the states of A and B change no further. मतलब ये मैजिक हो गई, समझो। यहाँ पे आपने A और C को कनेक्ट कर लिया और B और C को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ए और सी और बी और सी में आ गई, पर द लॉ स्टेट थी
जब आप ए और बी को भी कनेक्ट करोगे बाद बाद में, पूरा स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम होने के बाद में जब कनेक्ट करोगे, ए और बी के बीच भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गई है, ठीक है। यही स्टेट करती है, देखो, A and B are to be found in thermal equilibrium with each other. Two systems thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other. तो सोचो कि A एक सिस्टम हो गई है और C एक सिस्टम हो गई है और P एक तीसरी सिस्टम हो गई, ठीक है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं A और C को और B और C को, ठीक है। तो क्या होती है, समझ लो कि सी के पास चॉकलेट्स नहीं है, ठीक है। सी आपका एक दोस्त है जिनके पास कोई चॉकलेट्स नहीं है और आप है ए, ठीक है। आपके पास है 10 चॉकलेट और बी के पास है चलो 10 नहीं 15 चॉकलेट है आपके पास और बी के पास भी 15 है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप तो अच्छे दोस्त हैं, आप दूसरे दोस्तों को हेल्प करते हैं, है ना। तो आप सी को दे देते हैं 7 चॉकलेट, ठीक है। 15 है आपके पास, 7 चॉकलेट उसे दे देते हैं और बी क्या करता है, बी भी अच्छा दोस्त है सी का, तो सी भी दे देता है 7 चॉकलेट। तो आपके पास कितने 8 चॉकलेट बचे, बी के पास 8 चॉकलेट बचे और सी के पास आ गए 14 चॉकलेट, ठीक है। तो आप अब क्या बोलते हैं कि सी तेरे पास तो 14 चॉकलेट्स है, मेरे पास बस 8 है, और बी भी वही बोलता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाती है, सी बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे पास 14 चॉकलेट्स हैं, तेरे पास 8 चॉकलेट्स है, मैं एक काम कर दूंगा, तुझे 2 चॉकलेट्स दे दूंगा और बी को 2 चॉकलेट्स दे दूंगा, ठीक है। तो अब फाइनली सी के पास कितने हैं, 10 चॉकलेट है ना। आपके पास कितने हैं, 10 चॉकलेट है और बी के पास कितने हैं, 10 चॉकलेट, ठीक है। तो ए और बी आपके पास 10 है, सी के पास 10 है, बी के पास 10 है, अब तीनों के पास सेम सेम चॉकलेट है। तो अगर यही हो गई कि दिस इज सीन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज फॉर द zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स कि आप तीन सिस्टम को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। टी ए इज इक्वल टू टी सी, TB is equal to TC. This implies TA is equal to TB. ठीक है, ये याद रखो। ये याद रखने की बात भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये तो आप देख लोगे, आपने तो महसूस किया होगा। आप अगर भाई एग्जाम्पल लेके चल जाओ, ये चॉकलेट वाली, ये तो बहुत नेचुरल सी एग्जाम्पल हो गई है ना। वैसे फिजिक्स में ना ये करो कि याद मत रखो कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम लिखने जाओगे आप, तो आप ये कर लोगे कि हाँ ये नहीं आती है मुझे, क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किया नहीं कभी। पर आप कॉन्सेप्ट देख लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आई है, ए डायबिटिक वॉल आ गई है, और ये क्या पूछ रहे हैं कि इसमें 26 डिग्री है और इसमें 30 है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो ऐसा है, तो दोनों पे इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी कि 26 28 पे आएगी और 30 28 पे आएगी और इक्विलिब्रियम हो गई। ये ऐसे याद रखनी चाहिए, ठीक है। यू शुडंट रट्टा नहीं मारनी चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रट्टा ना मारने। आप साइंस में यही सोशल में रट्टा मार रहे होंगे कभी 10th क्लास में, ठीक है, ईवीएस में, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह याद रखनी पड़ेगी। फिजिक्स को आप you have to understand physics, you shouldn't remember it, ठीक है। ये हो गया, we have arrived at the concept of temperature formally via zeroth law now। तो हम अब टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। थर्मोमेट्री होती है टेम्परेचर से डील करने की कॉन्सेप्ट। तो अब हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क पे है। चलो अब होती है हमारी चैप्टर शुरू। अब तक बेसिकली इंट्रोडक्शन ही समझ लो आप।
ये जब तक जो भी अभी तक हुआ है ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है तो सही है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब से होने वाली है प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, एक मिनट दे दो मुझे, चार्जर। Okay, so zeroth law of thermodynamics led us to the concept of temperature that agrees with the common sense notion. Temperature is a marker of the hotness of a body. चलो, तो आपको पूछा जाएगा कि आज दिन कैसा, कितना गर्मी हो रही, तो आप क्या बोलोगे? बहुत गर्मी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। पर आपको बोलेंगे कि स्पेसिफिकली बोलो कि कितना गर्मी हो रही है, क्योंकि मेरी बहुत गर्मी, आपकी बहुत गर्मी में डिफरेंस हो सकती है। अगर मैं बोलो कि इतना सा धूप है, बहुत धूप है जैसे समर में, तब जाके मुझे गर्मी महसूस हो। पर आपको थोड़ी सी धूप में महसूस होगी गर्मी, तो आपकी गर्मी और मेरी गर्मी तो डिफरेंट हो गई है ना। तो इसीलिए हम स्टैंडर्डाइज करते हैं एक वेरिएबल लाके, एक नंबर लाके पीछे, ठीक है। और इसी नंबर को हम बोल रहे हैं कि इट इज टेम्परेचर, इट इज अ मार्कर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। तो अगर दिन नॉर्मल है तो क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। 24 डिग्रीज हो गई हो, 25 डिग्रीज हो गई, ये नॉर्मली नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। इन नॉर्मल टेम्परेचर जैसे स्प्रिंग सीजन में या अर्ली समर में, ऐसे दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। विंटर में क्या होती है? बहुत ठंड पड़ जाती है, हॉटनेस बहुत कम हो जाती है, कोल्डनेस बढ़ जाती है। और कोल्डनेस क्या होती है? एब्सेंस ऑफ हॉटनेस, ठीक है। तो विंटर में क्या होती है? 12 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ कुछ प्लेसों में बहुत कम हो जाती है ना टेम्परेचर। तो दिस इज द, हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ मेरे घर पे तो बहुत ही ठंड पड़ गई है, 5 डिग्री पे आ गए, हम कंबल वंबल मोड़ रहे हैं करके बैठ रहे हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड जो दूसरे शहर में रह रहा है बोल रहा है कि हाँ भाई यहाँ भी ठंड पड़ गई है, पर तुम्हारे जितने नहीं है, यहाँ पे 18 है या 12 है। वैसे ये कंपैरिजन कैसे कर रहे हो आप? टेम्परेचर बोल के कर रहे हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। Heat flows from the body at higher temperature to the one at lower temperature. सोचो कि आपने भाई स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया है मैंने, एक ये है बाउल है जो पानी उबल रही है जिसमें, ठीक है। आप बच्चे हो, ठीक है, आप तो कुछ जानते नहीं हो, आप जाके हाथ लगा लोगे, ठीक है। तो आपकी हाथ क्या होगी? जल जाएगी ना। योर हैंड इज गोइंग टू फील द टेम्परेचर एट वंस गेटिंग ऑन। पर कभी ये देखा है कि ये नहीं होगा कि आपके हाथ से वो बाउल जल रही है ना, क्योंकि द हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर, उल्टा नहीं होता, ठीक है। द फ्लो स्टॉप्स व्हेन द टेम्परेचर इक्वलाइजेस, द टू बॉडीज आर देन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये हो गई हो कि मैंने ये पेन लिया है, ठीक है, ये पेन समझ लो कि एसी से बाहर आई है। मेरा फ्रेंड जो है वो एसी के रूम में था और अभी अभी आया है और मुझे पेन वापस करनी है। ये पेन थी 16 डिग्री सेल्सियस पे और मैं तो बाहर ही था, घूम रहा था इससे, तो मैं 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होती है? जब तक मैं और ये पेन थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आए, तब तक मैं इस पेन को जब तक पकड़ रहा हूं, आई विल बी गिविंग इट सम हीट, ठीक है, बिकॉज आई एम एट ए हायर टेम्परेचर देन द पेन। ओके, समझ गए? We saw in some detail how to construct temperature scales to assign temperatures to different bodies. ये सब कुछ पहले चैप्टर में हो गया ना। We now describe the concepts of heat and other relevant quantities like internal energy and work. Concept of internal energy of a system is not difficult to understand. Okay. We know that every bulk system consists of a large number of molecules. Internal energy is simply the sum of kinetic energy and potential energy of these molecules. पर हमने तो ये बोल दिया कि we remarked earlier in thermodynamics कि kinetic energy of a system as a whole is not relevant. अगर मैं ये करूं या ये करूं, ये टाइम थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी आती है, ये मैकेनिक्स हो गई है ना। तो ये रेलेवेंट नहीं है पूरी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी दस द सम ऑफ मॉलिक्यूलर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस पेन को बना रहे हैं, उनकी एनर्जी की और
पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास कि मैंने इस पेन को इतनी सी हाइट पे रखी, ठीक है, इतनी सी हाइट पे रखी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास कहीं है, उससे बहुत दूर पे है हम लोग। तो अगर मैं ये पेन यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो क्यों गिरी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाई है और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर गिर गई है। तो वी नो दैट ये सब कुछ इंटरनल एनर्जी हो जाए क्या, द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हाँ, thus it includes the disordered energy associated with the random motion of the molecules। और हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी शोन बाय यू, ठीक है। हम एक अल्फाबेट असाइन कर लिया है ऐसे, ठीक है, हम इसे यू के नाम से जानते हैं। तो आप अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो और कहीं यू आ गई तो यू क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Thus, we have invoked the molecular picture to understand the meaning of the internal energy. As far as thermodynamics is concerned, U is a macroscopic variable of the system. U एक छोटी सी मॉलिक्यूल की एनर्जी से बात नहीं कर रहे हैं हम, सारे मॉलिक्यूल, सारी सिस्टम, सारी पेन की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। Its value depends on the given state of the system, not on history. That is not the part taken to arrive at the system। सोच लो कि मैं इस पेन को यहां से यहां लाया हूं, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी कोई चेंज हुई है, मैंने इसे एनर्जी दिया है कि ये लो रख ले अपने पास, नहीं दिया है ना। तो द पाथ इन विच आई टेक द पेन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पेन। ये आप समझ लो बस, ठीक है। Its value depends only on the state of the system, not on history. That is not the path taken to arrive on the state. Thus, internal energy of a given mass of gas depends on its state, described by the specific values of pressure, volume, and temperature, and not on the state of gas it came about. Okay. Pressure, volume, temperature are internal variables. Internal energy are thermodynamic state variables of system, ठीक है। And if we neglect the small it's just the sum of various energies, हाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ देखो, अब होते हैं दो टाइप्स ऑफ एनर्जी अभी के लिए, मतलब होते तो हैं बहुत सारे, आपको भी पता है, आपने भी सीखा है, ठीक है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में एक होती है पाथ एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ इन विच यू डिराइव। जैसे हो गई हो कि मैं इस पेन को यहां से यहां लाऊं तो एक पाथ से ला रहा हूं, और यहां से ऐसे लाऊं तो एक पाथ से ला रहा हूं, ठीक है। वो वेरिएबल हो गई वर्क, इसी पे आएंगे हम लोग अभी, ठीक है, रुको। पर इंटरनल एनर्जी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। आपको अगर मुझे इस पेन की टेम्परेचर को चेंज करनी है, मुझे इसको यहां से यहां लाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे रख के आई कैन हीट इट, ठीक है। लाइटर लाके जलाऊंगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, पर ये पेन तो यहीं पे है, पाथ पे नहीं है वो, इट्स अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, एक होती है स्टेट वेरिएबल, एक होती है पाथ वेरिएबल, ठीक है। स्टेट में आ गए क्या क्या, प्रेशर आ गई है, वॉल्यूम आ गई है, और टेम्परेचर आ गई है, और जो हमारी सेलिब्रिटी है अभी इंटरनल एनर्जी, वो भी स्टेट में ही आते हैं, ठीक है। Now, associated, you will see it includes rotational and vibrational motion of the molecule. ये सब कुछ आप नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, अभी के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
Internal energy of U of a gas is the sum of kinetic and potential energy of molecules when the box is at rest. इस डायग्राम में ये एक बॉक्स है ना, एक डिब्बा है जिसमें मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उनकी पार्क समझ लो, ये बस ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है उनपे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो है इस गैस की, इन बच्चों की जो पार्क में खेल रहे हैं उनकी एनर्जी, ठीक है। Kinetic energy due to the various types of motion is to be included in the same box moving with some velocity. The kinetic energy of the box is not included in U. आपको पता है कि अर्थ तो रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, एक जगह पे तो नहीं रह रही, पर पार्क रिलेटिव टू द अर्थ एक ही जगह पे रह रही है ना। अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो हम उस स्पीड को इन बच्चों को नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको नहीं दे रहे हैं कि भाई अर्थ रोटेट कर रही है इतनी स्पीड पे कि 5 किलोमीटर पर घंटे स्पीड पे रोल कर रही है, तो तू भी 5 घंटे पर स्पीड पे हिल रहा है, जबकि वो बच्चा तो बैठा है, वो थक गया है खेल खेल के, वो तो बैठा है, वो सोचेगा कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो बैठा हूँ, मैं कहाँ रोटेट कर रहा हूँ, मैं कहाँ हिल रहा हूँ, ठीक है। So for the molecules in the box, the kinetic energy is not to be included. ठीक है। However, heat and work, चलो शायद यहाँ पे लिखा होगा वर्क के बारे में, तब हम इस पे आएंगे, इस डायग्राम पे यहाँ पे पढ़ के आएंगे। What are the ways of changing internal energy? Consider the system to be of a certain mass contained in a cylinder with movable piston. ठीक है, जैसे ये हो गई है पिस्टन, ठीक है। यहाँ जो है ये है पिस्टन। पिस्टन मतलब क्या है, कुछ ऐसे डिवाइस है जो आगे पीछे होती है बस ना। Cylinder, okay. Experience shows that the two ways of changing the state of gas, hence its internal energy is, एक तो हो गई है कि उस सिलेंडर को कांटेक्ट में रखेंगे किससे, एक हायर टेम्परेचर, जैसे देखो the temperature difference will cause the energy to be flowing from the hotter body to lower colder body, thus increasing the internal energy. The other way is to push the piston down, which again results in the internal energy. ठीक है, तो एक चीज क्या कर सकते हैं आप, heat is energy transfer due to temperature difference between the system and surroundings. एक तो यहाँ पे एक बर्नर लगा लेंगे आप, ठीक है, एक ये लगा लेंगे, तवा लगा लेंगे, और जिससे क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में आएगी, वो तो पता है, हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ रही है तो इंटरनल एनर्जी हैज टू चेंज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई वर्क तो नहीं हो रही है ना यहाँ पे। वर्क होने की मतलब क्या होती है, मैकेनिक्स के भाषा में, अगर आप किसी को फोर्स दे रहे हो और वो हिल रहा है तो वहां वर्क हुई है, ठीक है। द फोर्स डन विच कॉजेस द डिस्प्लेसमेंट मींस दैट देयर इज वर्क डन। यहाँ पे वर्क नहीं हो रही है, यहाँ वो पिस्टन तो नहीं हिल रही है, ठीक है, वो तवा तो नहीं हिल रही है, वो बर्नर तो नहीं हिल रही है, यहाँ क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और दूसरी सिनेरियो ये हो गई है कि हम जो पिस्टन है यहाँ पे, ये पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, अंदर पुश कर रहे हैं हम लोग। अगर इस पिस्टन को अंदर पुश करेंगे तो इट डजंट इन्वॉल्व विद टेम्परेचर डिफरेंस पर से, पर प्रेशर तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप डाल रहे हो ना, उस पिस्टन को अंदर डाल रहे हो तो प्रेशर ज्यादा हो रही है, मॉलिक्यूल्स को रहने में स्पेस कम हो रही है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, तो ऐसे भी इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है, ठीक है। The other way is to push the piston down to do work on the system, which again results in increasing the internal energy of the gas. Of course, both these things could happen in reverse direction. With surroundings at lower temperature, heat would flow from the gas to the surrounding. Likewise, the gas could push the piston up and do work on the surroundings. In short, heat and work are two different modes of altering the state of a thermodynamic
system and changing its internal energy. ठीक है, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हो गई कि आप हीट को दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, या आप उस ऑब्जेक्ट पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू चेंज। ये याद वही बोल रहा हूँ ना, याद रखने की बात नहीं है, समझ लो बस, ठीक है, जस्ट फील इट। Notion of heat should be carefully distinguished from the notion of internal energy. Heat is certainly energy, but it is the energy in transit. आपको ये नहीं समझना है कि अगर हीट है तो तभी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि इस पेन को इंटरनल एनर्जी है, बट इस पेन को हीट है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। हीट इज द एनर्जी विच, अगर सोच लो कि आप नॉर्मली घर पे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, कैजुअली बैठे हो, ठीक है, पर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग? अच्छे से अच्छे बाहर के कपड़े पहनोगे, हाँ, कोई जीन्स पैंट पहनोगे, ये वो करोगे। पर जब घर पे हो तब भी आप कपड़े पहन रहे हो, जब जा रहे हो तब भी आप कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, पर ये डिफरेंट तरीके के कपड़े हैं ना। जब घर पे हो आपकी इंटरनल एनर्जी है, समझ लो, क्योंकि जो कपड़े हैं आपके वो इंटरनल एनर्जी, और जब बाहर जा रहे हो ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, आप कपड़े चेंज कर रहे हो, किसमें? बाहर के कपड़ों। ये बाहर के कपड़े क्या हो गए? हीट, क्योंकि हीट इज द एनर्जी विच इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसिट, जब मूव हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, द डिस्टिंक्शन इज ऑफ बेसिक सिग्निफिकेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। The state of a thermodynamic system is characterized by its internal energy and not heat. A statement like a gas in a given state has a certain amount of heat is meaningless. उसकी कोई ये नहीं है। अगर गैस ऐसे ही पड़ी है, ये नहीं बोलोगे कि हाँ उस गैस की हीट हो रही है, नहीं। A gas in a given energy has a certain amount of internal energy. इसकी तो कोई ये हो रही है। अगर समझ लो कि ये बॉटल, ठीक है, एक थोड़ी ये है, कोल्ड हो गई है, तो इस बॉटल में मैंने थोड़ी गैस करके रखी, ठीक है, आई ट्रैप सम गैस इनटू दिस बॉटल। इस गैस में अब हीट नहीं है, ठीक है, हीट नहीं है, या ये गैस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, ये सब कुछ रॉन्ग होते हैं बोलने के लिए। क्या सही है बोलने के लिए? इस गैस में internal energy है. This is the right thing to say about the gas. Similarly, the statements a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work was done by the system are perfectly meaningful. यही बोलना सही है कि हमने इस गैस को जो है इस पे लाइटर लगा के थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब हीट दिया है, दिस इज राइट। या इस पे थोड़ा वर्क किया है, मतलब मैं सोच लो कि इसको ऐसे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, ओके, थोड़ा ये हो रही है, क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इनसाइड दिस बॉटल इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। To summarize, heat and work in thermodynamics are not state variables. समझा गया है ना मैंने यहाँ पे? हीट वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, वो पाथ वेरिएबल्स कर रहा है। और अब यू तो कल की सेलिब्रिटी हो गई है, अब दो नए सेलिब्रिटी आ गए, कौन कौन है ये लोग? एक हो गई है, एक हो गई है क्यू। क्यू मतलब हीट, ठीक है, क्यू हीट हो गई है। और डब्ल्यू, डब्ल्यू तो अपना जान जिगरी दोस्त है ना, हमने इसे मैकेनिक से देख रखी है। डब्ल्यू हो गई है वर्क, ठीक है, ये दोनों स्टेट नहीं है, पर दिस बोथ आर पाथ वेरिएबल, ठीक है, क्यू
be path variable. They are modes of energy transfer to a system resulting in change in its internal energy. Okay. In ordinary language, we often confuse heat with internal energy. पर heat internal energy नहीं है. Distinction is sometimes ignored, but ये बहुत ही important difference है. आपको ये समझने पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आएंगे. अब आएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो हमने देखी है यहाँ पे देखिए हमें कि एक हो गई इंटरनल एनर्जी, एक हो गई हीट, एक हो गई वर्क. डेल्टा क्यू heat supplied to the system by the surroundings. Delta W work done by the system on the surroundings. Okay, or delta U change in internal energy of the system. अब आगे बढ़ने से पहले ना I have to explain you something. डेल्टा क्यू हो गई, क्या बोलते हैं? हीट सप्लाइड टू. यहाँ देखो ये टू को इटैलिक्स में लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि टू बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हो गई है यहाँ पे. The system by the surroundings. Delta Q is something we are giving to the system, पर delta Q is not something जो system हमें दे रही है, हम system को दे रहे हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हो गई है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको. नहीं तो आप जाओगे सब कुछ आ गई है आपको, और वहां पे एग्जाम पे जाओगे तो देखोगे कि हीट इज बीइंग गिवन टू द सिस्टम, या हीट अगर सिस्टम दे रही है और आप समझेंगे कि अच्छा मैं ब्लाइंडली ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो नहीं होगा ना, वैसे रॉन्ग हो जाएगी. तो डेल्टा क्यू सिस्टम को हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग टू द सिस्टम, वी आर गिविंग डेल्टा क्यू. और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम वर्क कर रही है. ठीक है, सोच लो कि हम घोड़े को घास देंगे ना, द घास इज बिकमिंग द दिस थिंग, डेल्टा क्यू है घास. और जब घोड़ा भागी, घोड़ा वर्क कर रही है, वो डेल्टा डब्ल्यू है घोड़े की वर्क. हम भाग नहीं रहे हैं ना, घोड़े पे हम बस सवार हैं, हम बैठे हैं बस, और वो घोड़ा भाग रही है. दैट इज द वर्क डन बाय द हॉर्स और द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स. बाय the system on the surroundings है W, delta W, and to the system by the surroundings है delta Q. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको. ये कॉन्सेप्ट जो है एक बार क्या होती है, वो एग्जाम में कुछ और दे देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, कुछ और लिख के आते हैं. तो ये नहीं करना है. ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन हो सकती है और आप बहुत ही बुरा गलती करोगे तो सही मार्क्स तो गए. तो ये आ जाती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एनर्जी आप दे रहे हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क गिवन. ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगी. तो डेल्टा क्यू जो आप एनर्जी दे रहे हो, इट एक्चुअली बिकम्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम. समझ लो कि आपके चाचा आए हैं, ठीक है, चाचा आए और आपको पैसे दे, ठीक है, पैसे आपको वो दे रहे हैं, ये पैसे है डेल्टा क्यू. और आप क्या करते हैं, आप तो समझदार बच्चे हैं, पूरा ही वेस्ट नहीं करेंगे ना. आप थोड़ा अपने पास रख लेंगे और थोड़ा लेके चॉकलेट खरीदेंगे. ठीक है, जो आपके पास रख रहे हो वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो आप खरीद रहे हो चॉकलेट जिससे, वो है डेल्टा डब्ल्यू वर्क. ठीक है, ये एग्जांपल समझ. एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम गोस इन पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रेस्ट गोस टू द वर्क इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो चाचे वाली एग्जांपल याद रखिए. ये इक्वेशन जो है इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कुल अच्छी इक्वेशन है ना, मुझे बहुत पसंद है ये इक्वेशन. जब मैं पढ़ रहा था आई यूज्ड टू डू मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस इक्वेशन.
तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये इक्वेशन। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम थोड़ा बदल के लिख सकते हैं। अभी क्या लिखा है, ये इक्वेशन लिखी है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन से ये W जो है, ठीक है, ये W जो है मैं इसको यहां से मिटा के कॉपी करके जहां पे लेफ्ट साइड Q के पास कर दिया। ठीक है, तो अब राइट साइड पे क्या है, बस इंटरनल एनर्जी है, और लेफ्ट साइड पे आ गई है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। Now, this system may go from an initial state to the final state in a number of ways. For example, to change the system of change the state of a gas from T1 V1 to T2 V2, we can first change the volume of the gas from V1 to V2, keeping its pressure constant. We can first go to the first state P1 V2, and then change the pressure of the gas from P1 to V2, keeping the volume constant to take the gas to P2 V2. Okay. Alternatively मतलब दूसरी मेथड से, दूसरी तरीके से, okay, we can first keep the volume constant and then keep the pressure constant. ठीक है, तो बेसिकली आप कुछ भी करो, पहले वॉल्यूम चेंज करो, पहले प्रेशर चेंज करो, आपको ये करनी है कि लास्ट में जो है P2 V2 पे आ गए। ओके, since U is a state variable, delta U only depends on the initial and final states and not the path taken, क्योंकि हमें तो पता है हमारे U सब तो ये है। ठीक है, क्या है ये, U is a state variable, it doesn't depend on the path taken, path variable नहीं है, it's a state variable. Okay, so delta U जो है, change in U, delta मतलब change. Okay, change in internal energy does not depend on the path taken. However, it depends on the initial and final state of the system. Okay. However, delta Q and delta W will in general depend on the path taken to go from the initial states to the final states. From the first law of thermodynamics, it is clear that the combination of delta Q minus W is, however, path independent. क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि U तो स्टेट वेरिएबल है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो डेल्टा U भी हो गई है एक स्टेट वेरिएबल। हाँ, तो इससे क्या समझते हैं हम लोग, क्योंकि डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज पाथ इंडिपेंडेंट। हमें ये भी पता है कि डेल्टा Q और डेल्टा W तो पाथ वेरिएबल्स हैं, पर जब इन दोनों का आप ये करते हैं, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बिकम पाथ इंडिपेंडेंट और स्टेट वेरिएबल बन जाते हैं बेसिकली। ठीक है, this shows that if a system is taken through a process in which delta U is zero, आप उस सिस्टम में कोई चेंज नहीं ला रहे हो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तब क्या होगी, यहाँ पे ये U जो है, यहाँ पे ये U जो है वो जीरो हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से एक बार बना लूंगा और ये हो गई जीरो। तो थोड़ा और मैथ कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या होगी, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये कब होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में होती है, उस पर आएंगे। अभी कौन से सेक्शन में है, 11.5 में, और ये कब आ रही है, 11.8 में आ रही है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली, और ये एक इक्वेशन होती है जब डेल्टा U जीरो होती है, पर मेन इक्वेशन तो यही है, इसी से हमें ये इक्वेशन मिली। ओके, heat supply to the system is used up entirely by the system in doing work on the environment. If the system is a gas in a cylinder, it's a movable piston. The gas is moving in the piston, does work.
Since force is pressure times area and area times displacement is volume, work done by the system against a constant pressure is delta W is equal to P into delta V. तो अब क्या हो रही है, हम ले रहे हैं कि पिस्टन है, ठीक है, तो प्रेशर तो चेंज नहीं हो रही है, हमने प्रेशर को ये कर लिया, बोल दिया कि प्रेशर टू जैसा है वैसा है, ठीक है, ले ले रहे हैं, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन से ये कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे होगी ये पिस्टन है ना, इसको हम नीचे ला रहे हैं, तो क्या होगी, वॉल्यूम तो कम हो रही है यहाँ पे, जैसे पिस्टन नीचे जाएगी उतना वॉल्यूम कम होते रहेगी, तो उस क्या हो रही है यहाँ पे, वर्क हो रही है ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी तो वर्क होनी ही चाहिए. वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट a constant pressure is delta W is equal to P into delta V, where delta V is the change in the volume of the gas. Thus, फिर से यही इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब यही इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखो. और यहाँ पे क्या हो रही है, हमने देख लिया कि डेल्टा डब्ल्यू हो गई है पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो ये है, एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, और प्रेशर तो फोर्स टाइम्स एरिया हो गई, है ना, ओके. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे डेल्टा वी इंटू पी से, इस इक्वेशन. तो क्या आएगी हमें इक्वेशन, डेल्टा क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू डेल्टा वी, द चेंज इन वॉल्यूम इंटू प्रेशर. As an application of equation, consider the change of internal energy for 1 gram of water when we go from its liquid to vapor phase. जब आप बॉयल कर रहे हो वाटर, वो लिक्विड टू वेपर फेज जाएगी, गैस हो जाएगी, ठीक है, तो वो एग्जांपल ले लेंगे अभी. तो एक होती है प्रॉपर्टी लेटेंट हीट ऑफ वाटर कूलिंग, ओके, जिस वाटर के लिए ये होती है 256 जूल्स पर ग्राम, 2256 जूल्स पर ग्राम हुए, ठीक है, तो डेल्टा क्यू हो गई है 2256 जूल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 gram of water has a volume of 1 centimeter cube in liquid phase and 1671 centimeter cubes in vapor pressure. Okay. Therefore, work done is equal to pressure into volume of gas, क्योंकि गैस तो फाइनल स्टेट है और लिक्विड तो इनिशियल स्टेट है, तो चेंज हो गई है, तो इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 to the power of 5 इंटू 1671 इंटू 10 to the power of -6, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो इंटू 10 to the power of -6 हो जाए, क्योंकि हम सारे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पे करते हैं, और स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होती है, मीटर इज द मेट्रिक यूनिट, स्टैंडर्ड है मीटर, तो सेंटीमीटर जो है इंटू 1/100 ऑफ अ मीटर है ना, तो जब एक सेंटीमीटर का क्यूब लोगे तो 1/100 का क्यूब हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10 to the power of -6, ओके, तो इज इक्वल टू 169.2 जूल. ओके, equation 11.3 then gives delta U is equal to 2256 minus 169.2 is equal to ये हो. Okay, this is just an example. ठीक है, so we see that most of the heat goes to increase the internal energy of water in transition from liquid to vapor. तो क्या हो रही है, ये जो आप हीट दे रहे हो, कितना हीट दे रहे हो, 2256 जूल्स दे रहे हो आप, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये पूरा 2256 जूल्स वर्क डन में चली जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड फेज से वेपर फेज में चेंज कर रही है 2086.8 जूल्स. इतना एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज ओनली फॉर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी. जो बचा कुचा है, जो 169.2 जूल्स है, हमने कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे,
यही होती है वर्क डन। ठीक है, सिर्फ इतना ही जूल्स का वर्क कर रही है जब आप इनिशियली चेंज कर रहे हो लिक्विड से वेपर तक, इतना एनर्जी तो जा रही है, बस चेंज कर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के रूप में चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू supplied to a substance changes its temperature from T to T plus delta T. Delta T हो गई है चेंज, जितना चेंज कर रहे हैं हम। We define that heat capacity of a substance to be S is equal to delta Q by delta T. ठीक है, तो ये एक नई प्रॉपर्टी समझ। स्पेसिफिक हीट मतलब आप इतना एनर्जी दे रहे हो, सोच लो कि प्लास्टिक प्लास्टिक है कि रबर, ठीक है, आप रबर को लेके ऐसे करोगे तो आएगी ना, इतनी दूर आ जाएगी। ठीक है, पर वही हो गई है कि मैंने इस फोन को लिया, फोन को लेके ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं यार, नहीं एक्सपेंड हो रही है, रबर की तरह तो नहीं है ये। तो आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो पर उतना इफेक्ट नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसका थर्मोडायनेमिक बातों में एस इस ज्यादा है, एस ज्यादा होगी तो आप ज्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है, पर चेंज कम हो, तो टेम्परेचर का चेंज उतना ज्यादा नहीं होगी जितना आप एनर्जी दे रहे हो। और कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि आप इतना सा एनर्जी दे रहे हो और इतना सा चेंज आ रहा है, उनकी एस बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे हो गई है यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट का एल्यूमिनियम की बहुत है। ठीक है, बहुत है मतलब आप बहुत एनर्जी दे रहे हो और टेम्परेचर बहुत कम बढ़ रही है। पर टंगस्टन, टंगस्टन तो पता ही होगा ना आपको, बल्ब में लगा होता है। ठीक है, आपको आप उसको आप बहुत ही कम एनर्जी दोगे तब भी वो बहुत ये हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगी एक ही बार। तो वो है, दैट इज एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं हम। जितनी चेंज इन टेम्परेचर मतलब पर हीट गिवन। ओके, we expect delta Q and therefore heat capacity is to be proportional to the mass of the substance. Further, it could also depend on the temperature, that is a different amount of heat may be needed for a unit rise in temperature at different temperatures. To define a constant characteristic of the substance and independent of this amount, we divide S by the mass of the substance M in kg. तो S जो है उसे हम kg में लेते हैं। ठीक है, एस बाई एम, यहाँ एम हो गई है मास, तो 1 बाई एम डेल्टा क्यू बाई टी। एस इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये छोटा एस जो है जो हम ले रहे हैं वो बड़ा एस, ठीक है, बड़ा एस का पर वॉल्यूम है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। जैसे हो गई है कि बड़ा एस ना, अगर आप ज्यादा मास लोगे तो ज्यादा होगी, ये होगी, पर छोटा एस इट डजंट मैटर, आप पूरा 1 टन ले लो या 20 टन ले लो, एक इतना सा ले लो या इतना सा भी लो, छोटी एस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका बस टेम्परेचर और सब्सटेंस पे निर्धारित होती है। यू नो, इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब छोटी एस की यूनिट हो गई है जूल पर केजी केल्विन। If the amount of substance is specified in terms of moles instead of mass m in kg, we can define the heat capacity per mole of the substance as, जैसे यहाँ पे हो गई है पर मास ले रहे हैं, यहाँ पे पर मोल लेंगे, वही डिफरेंस सी को बोल देते हैं इसके नाम। ठीक है, तो ये हो गई है molar specific heat of the substance. C is independent of the amount of substance. C depends only on the nature of it, its temperature and conditions under which the heat is supplied. The unit is joule per mole Kelvin.
एज वी शैल सी लेटर, ये सब कुछ तो बाद में देख लेंगे, उसने ही बोला है ना सी लेटर करके, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस में बी needed to define C or S. The idea in defining C is that simple predictions can be made in regard of molar specific heat capacity. तो इस टेबल में जैसे हम लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम की दिया गया है स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट, ठीक है। कार्बन की दी गई है, कॉपर, लेड, सिल्वर, टंगस्टन, इन सब की ये दी गई है। We see that chapter 12, that predictions of specific heats of gases generally agree on the experiment. Next chapter में देखते हैं। We can use this law of equipartition, ये सब कुछ है next chapter में, ठीक है। तो हाँ, ये कंसिडर कर लो, एक सॉलिड है, एन एटम्स है क्योंकि सब में एटम्स होते हैं, ठीक है। एक एक एटम इस मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रही है, तो यू नो आप गाने सुन रहे हैं, बस ऐसे 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 कर रहे हो, वैसे भी हैं ये एटम्स, ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं। एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी ऑफ 2 into half kBt, मतलब kBt की एनर्जी, ठीक है। इन 3 dimensions द एवरेज एनर्जी इज 3 into kBt। एक डायमेंशन पे kBt हो गई, तो 3 में 3 into kBt हो जाएगी ना। तो वैसे फॉर ए मोल ऑफ सॉलिड द टोटल एनर्जी इज U is equal to 3 into kBt into Na is equal to 3 RT, क्योंकि kBt into Na is equal to R हो जाए। और ये मोल ऑफ सॉलिड मतलब आपको तो पता ही होगा, पर मोल एक ये है, इतने अमाउंट ऑफ चीजों को मोल बोलते हैं। आई थिंक 6.03 into 10 to the power of 23 को मोल बोलते हैं। मुझे उतना याद नहीं है मोल, पर ऐसे ही कुछ होगा, एक बार आप चेक कर लो बात, ठीक है। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, वो इक्वेशन जो देखी है वही है। डेल्टा U इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेल्टा U, क्योंकि इतनी ये है ना छोटी सी चेंज होगी, सॉलिड में उतना दिखती नहीं है सॉलिड में चेंज, तो डेल्टा U को ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा Q ले लेंगे हम लोग। देयरफॉर C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो C इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T होगी, और U तो यहाँ पे क्या है हमें 3 into RT, तो 3 into RT by T होगी, तो 3 into R होगी, okay। This is the predict the experimentally measured values which generally agrees with 3R at ordinary temperature. कार्बन एक एक्सेप्शन है, वो केमिस्ट्री में जाएगी, तो अभी उतना केयर करने के बाद the agreement is known to break down at low temperature, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कल से हम सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। थैंक यू।